سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، پشاور کے علاقے حیات آباد فیز 7 کے مکان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور پولیس کا آپریشن۔ مارے گئے دہشت گردوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ مکان میں اب بھی 2 سے 3 دہشت گرد کے موجود ہونے کی اطلاع ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کریں گے نمائندہ جیو نیوز نادیہ صبوحی سے۔ نادیہ، کیا تازہ اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، حیات آباد فیز 7 میں ابھی جو 3 منزلہ مکان ہے اس میں ابھی بھی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ جو اطلاعات اب تک آئی ہیں اس کے مطابق 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں، تاہم ابھی جو بالکل فریش اطلاع ہے اس کے مطابق 2 دہشت گرد ابھی بھی مکان میں موجود ہیں۔ ابھی ایک گھنٹے پہلے یہ بتایا گیا تھا پولیس کی جانب سے کہ کچھ دیر میں ہی، کچھ منٹس میں ہی آپریشن مکمل ہو جائے گا، تاہم ابھی تک آپریشن مکمل نہیں ہوا۔ 1 گھنٹے کے دوران تقریباً 7 دھماکے یہاں سنائی دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے اس سٹریٹ کو جو 11، 12 اور 10 جو سٹریٹ ہے اس کو گھیرے بھی لیے، اور اس علاقے پر جو ٹریفک کے اہلکار ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں، جو یہاں پر مختلف جو ٹریفک آ رہی ہے اس کو روک رہے ہیں اور صرف جانے نہیں دیا جا رہا۔ یہاں جو گلی ہے جہاں پر یہ آپریشن جاری ہے اس کے مکینوں کو یہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے، اور سیکیورٹی اہلکار انہیں اپنی سیکیورٹی کے ساتھ میں مختلف مقامات پر جہاں ان کو پہنچا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ نادیہ صبوحی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ تازہ ترین اپڈیٹ دیں۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا کے مطابق حیات آباد پشاور میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ مکان کو کلیئر کیا جا رہا ہے، 15 منٹ بعد آگاہ کر دیں گے، یہ کہنا ہے وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی کا۔ پشاور میں جاری اس آپریشن کے دوران 4 سے 6 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے آفتاب احمد۔ جی، حیات آباد میں اس وقت بھی جو آپریشن ہے وہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ریسکیو کے حکام، ان سے بات کرتے۔ سر بتائیے گا مجموعی طور پر کتنے افراد کو فرسٹ ایڈ دی گئی ہے؟ ابھی تک جو ہم نے پیشنٹس کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کیا ہے وہ 4 سے 6 بندے ہیں جو جن کو ہم نے ریسکیو کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے بھی نوجوان اس میں زخمی تھے، ان کو ہم نے فرسٹ ایڈ پرووائڈ کی۔ اسی کے ساتھ جب بلاسٹ ہوئے تو جو ساتھ کے جو پڑوس تھے وہ ان کے مطلب گھروں کی شیشے ٹوٹ گئے تھے، تو ان سے وہ تھوڑے سے بلاسٹ، ان کی جو زخمی تھے کوئی کدھر آیا تھا تو ان کے مائنر انجرڈ ہو گئے تھے، ان کو ہم نے فرسٹ ایڈ پرووائڈ کر کے ان کو ہم نے وہ کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ جی بالکل، اس وقت بھی آپریشن مکمل طور پر ابھی اناؤنس نہیں ہوا کہ کلیئر کیا گیا ہے۔ جب ہم یہ بات کر رہے تھے ان سے، اس دوران بھی ایک دھماکے کی آواز یہاں پہ سنائی دی گئی ہے، تو تاحال یہاں پہ جو آپریشن ہے وہ جاری ہے اور صورتحال تاحال کلیئر قرار نہیں دی گئی ہے۔ جی، بلوچستان کے ضلع مستونگ میں RCD شاہراہ پر مسافر وین اور ٹریلر میں تصادم سے 11 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ متاثرہ افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے جو کراچی سے کوئٹہ جا رہا تھا۔ زخمیوں اور لاشوں کو کوئٹہ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آئندہ کسی گرفتار آفیسر کو ہتھکڑی نہیں لگائی جائے گی۔ گریڈ 19 اور اس سے اوپر کے افسران کو اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے سول سیکریٹریٹ لاہور میں افسروں سے خطاب میں یہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی بلا خوف اور خطر قانون کے تحت فرائض انجام دے۔ آصف علی زرداری، فریال تالپور سمیت 30 ملزمان کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج نے ریمارکس دیے کہ نورین سلطان، کرن امان کی وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست پر چیئرمین نیب کو فیصلے سے آگاہ کرنے کی ہدایات دے دی ہیں۔ ملزمان اعظم وزیر خان اور ناصر کی عدم حاضری پر قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ ملک میں صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ صحافی نے آصف علی زرداری سے سوال کیا۔ آصف علی زرداری نے جواب دیا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں یہ روز پاکستان میں نیا تجربہ کرنے کے موڈ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں صورتحال دن با دن بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم صدارتی نظام کے قائل نہیں، انہیں کوشش کرنے دو، ہم روکیں گے۔ روز پاکستان میں نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کے موڈ میں، میں تو سمجھتا ہوں کہ بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں، صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں، زرداری صاحب اس پر ہم تو نہیں اس کے قائل، کوشش کرنے دو ان کو، ہم روکیں گے۔
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर को गिरफ्तारी का खदशा है। फरियाल तालपुर ने नैब के नए नोटिस के खिलाफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। फरियाल तालपुर ने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि उनकी जमानत कब्ल अज़ गिरफ्तारी मंजूर की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन नैब को शहरी शमशाद अली को जाली कॉल अप नोटिस भेजने की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस डायरेक्टर जनरल नैब कराची की जानिब से पेश करदा रिकॉर्ड पर बरहम हुए और रिमार्क्स दिए कि हम नैब वालों को हर केस में तैयारी से आने का मौका देते हैं, फिर भी नैब की कारकर्दगी सबके सामने है। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि किसी कौमी इदारे का नाम खराब हो। जाली कॉल अप नोटिस पर नैब के एडिशनल डायरेक्टर आमिर भट्ट ने जवाब जमा करा दिया। नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों को बजरिया डाक सवालनामा भिजवा दिया है। सवालनामे में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकों में आने वाली रकूम से मुतालिक पूछा गया है। हमजा शहबाज आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के लिए आज नैब लाहौर के दफ्तर में पेश होंगे। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी और मगरबी इलाके 5 रोज से तूफानी बारिशों की लपेट में हैं। नदी नाले बिखरे हुए हैं। सैलाबी रेले से हरनाई में राब्ता पुल भी बह गया। लैंड स्लाइडिंग के बायस योब डेरा इस्माइल खान शाहरा भी बंद है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। कई इलाकों में राब्ता सड़कें बह जाने से ज़मीनी राब्ता भी मुअत्तल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचकज़ई। आज बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और मगरबी इलाकों में आज 5वें रोज भी मूसलाधार मौसमवार के बारिशों का सिलसिला वक्फे के साथ जारी, जबकि चमन, पशीन, लोरलाई, हरनाई, खानोजई, बरशो, जोब, शेरानी, दुक्की, वादी ज़ियारत, हरनाई में भी इस वक्त खासकर मुस्तकिल पंजाब के साथ और खासकर बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है वहाँ पर भी तूफानी बारिशों का सिलसिला बरकरार है। वो आज भी लैंड स्लाइडिंग के बायस योब दिया खान शाहरा जो है हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद है, जबकि हरनाई पर जब राब्ता पुल गुज़िश्ता रोज बह गए थे, अब तक वहाँ पर जो राब्ता पुल है वो बहाल नहीं किए जा सके। कोटा, चमन शाहरा पर भी आमदरफ्त मुतासर है। तमाम अजला में इंतजामिया हाई अलर्ट है। राजनपुर कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से नदी नालों में तोगयानी है। फैसलाबाद में तेज आंधी, वक्फे से होने वाली बारिश और यालाबारी से गंदम की तैयार फसल भी मुतासिर हुई है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे। राजनपुर के कोहे सुलेमान में हालिया बारिश की वजह से नदी नालों में जो तूफानी है, जो नाला कास सुल्तान का जो 71,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो इस टाइम हाजीपुर, लुंडी सदान, लालगढ़ और मीरापुर के इलाकों को मुतासर कर दिया है। उसने इसमें कुछ बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं, जिसमें तैयार फसल गंदम की वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और मैं इस टाइम यहाँ पर एक सेम नाले के करीब मौजूद हूँ, जहाँ का हिफाजती बंद ये आप देख सकते हैं कि टूट गया है। इसका पानी बड़ी तेज़ी के साथ ये इलाका यहाँ पर आकिल पुल का ये इलाका है जो इसकी तरफ पानी बढ़ रहा है। जी, फैसलाबाद में गुज़िश्ता शाम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। इससे पहले 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी चली और मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी भी हुई। रात गए तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मजमूई तौर पर 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मूसलाधार तेज बारिश, आंधी और ज़ालाबारी की वजह से गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है। तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी मजीद बारिश होने का इम्कान है। और अभी आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कोयटा की हज़ारा टाउन इमाम बारगाह पहुँच गए हैं। इस वक्त वो फ्रूट मंडी धमाके में शहीद अफराद के लवाहिकीन से गुफ्तगू कर रहे हैं। उस तरह से रिएक्ट नहीं करती, लिहाजा बेइंतहा ज़रूरी था कि मैं ख़ुद जाकर, मेरी ज़ाती तकलीफ़ है ये, मैं ख़ुद जाकर यहाँ पर हाजिर हूँ, सबकी खिदमत में, लवाहिकीन की खिदमत में, कम्युनिटी के सामने भी आऊँ। जहाँ जहाँ ये शहादतें हों तो एक इस वजह से कि एक हमदर्दी का एहसास, उनको ये ख्याल रहे कि फ़िक्र करने वाले मौजूद हैं। अलबत्ता ये एतराज़ अपनी जगह पर रहेगा कि इसको और तेज़ी से नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं समझता हूँ उस बात के अंदर बड़ी अहमियत है कि इसके अंदर हुकूमत चौकन्ना रहे। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझसे कल ये कहा कि मैं कल नहीं आ सका, तो उन्होंने कल रात को ये पैगाम भेजा कि मैं आज ज़रूर आ जाऊँ। मैं ख़ुद भी आना चाह रहा था, उनका भी ये मेरे लिए ये पैगाम था कि यकीन दिला दिए वो भी इंशाअल्लाह आएंगे। आप जाकर वहाँ पर लोगों को यकीन दिलाएं
कि नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन नंबर 1, नंबर 2 जिनका नुकसान हुआ, जो शहीद हुए, उनके पैकेज के ऊपर मैं चीफ मिनिस्टर साहब का मशहूर हूँ कि इन्होंने उस पैकेज का भी ऐलान किया। कोई कंपनसेशन का इम्कान नहीं है, जो इंसानी जान जाती है उसका कोई नेमुल बदल हो नहीं सकता, तो लिहाजा ये पैकेज कोई कंपनसेशन नहीं है। पैकेज सिर्फ इस माना करके है कि वक्ती मसाइल के एतबार से उन लोगों को निकाल लिया जाए। कतन इसको ये मत समझिएगा कि इंसानी जान का कंपनसेशन है, मगर मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा इक़दाम, अच्छा कदम है इनका कि वो पैकेज का भी ऐलान कर दिया। दूसरे जो शहीद हुए उनकी फातिहा ख्वानी मेरा मकसद था और इसीलिए मैं हाज़िर हुआ। तीसरा ये कि मुस्तक़बिल के एतबार से ये वादा करने के लिए, क्योंकि मेरा भी तो जवाब अल्लाह ताला के यहाँ होगा ना इस बात का कि तुमको कोई किसी ओहदे पर अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला ने बिठाया है, तुमने क्या किया। तो लिहाजा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ मुमकिन होगा, मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जा पाऊँगा अभी, जो कुछ मुमकिन होगा उसमें पूरी इस बात की हम फ़िक्र रखें। ये पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ भी मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर ये निफाक पब्लिक के अंदर और अवाम के अंदर नहीं आया, और मुझे फ़ख्र है इस बात के ऊपर। और जब मैं अपने मगरिब के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर देखता हूँ, वहाँ ये मामला बहुत ख़राब भी हुआ और पूरी कौम तबाह हो गई। तो तबाही वहाँ पर आती है जब नफ़रतें डाल दी जाएँ। पाकिस्तान का आइन हर इंसान को, आप चाहे हम सब मुसलमान हैं, उसके अलावा माइनॉरिटीज़ के साथ भी एक बड़ा एहसान का रवैया रखना चाहिए। तो वो तो माइनॉरिटीज़ की बात है और हम सब तो मुसलमान हैं, आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दोबारा इस बात की बात कर दूँ कि ताज़ियत के लिए हाज़िर हुआ था, फिर जो ज़ख्मी हैं उनकी अगर मुमकिन हुआ तो इयादत भी करूँगा। जो लवाहिकीन हैं यहाँ बैठे हुए भी हैं, मैं उनका मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनके साथ एहसास हमदर्दी और अल्लाह ताला से दुआ के साथ कि अल्लाह इनको सब्र अता करे। बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं ये कभी आदमी ख़ुद जहाद करके कुर्बानियाँ हासिल करता है जब हमारी फ़ौज के नौजवान शहीद होते हैं या हमारी पुलिस के होते हैं, और कभी अल्लाह ख़ुद उस रास्ते में डालता है कि तुम्हारी शहादत इस तरह से आएगी और तुम्हारी ये शहादत है। तो ये लोग भी सब शहीद हैं, अल्लाह ताला इनको जिएगा। वो तो उसने खुद ही वादा किया है कि ज़िंदा है, ये अल्लाह ताला का अपना इनाम है, मगर कौम भी इस एहसान को अपने सीने में रखेगी। बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कोयटा की हज़ारा टाउन में मारका पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पेशावर के इलाके हयाताबाद में जारी ऑपरेशन से मुतालिक आपको अपडेट करें। ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इमारत को क्लियर कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 1 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।